یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب عباسی خلافت کا دور تھا اور بغداد دنیا کا سب سے خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں بغداد کی گلیوں میں تجارت کی رونق ہوتی تھی اور بازاروں میں ہر طرح کے تاجر اپنا مال فروخت کرتے نظر آتے تھے۔ اسی بغداد میں سوق الذہب یعنی سونے کی منڈی میں ایک تاجر کی دکان تھی، جس کا نام تھا ابراہیم بن یعقوب۔ وہ ایک ماہر صراف تھا، سونا، چاندی، قیمتی پتھر اور زیورات بیچا کرتا تھا۔ لیکن ابراہیم عام تاجر نہیں تھا، وہ نہایت ذہین اور غیر معمولی فہم رکھنے والا شخص تھا۔ جب سمرقند سے قافلہ آتا تو اسے پہلے ہی اندازہ ہو جاتا کہ کس چیز کی قیمت بڑھنے والی ہے۔ جب تاجر بغداد سے یمن کا سفر کرتے تو ابراہیم کو معلوم ہوتا کہ کون سا راستہ زیادہ نفع دے گا۔ بغداد کے مختلف بازاروں میں اس کی 3 دکانیں تھیں۔ اس کا محل شہر کے امیر علاقے میں تھا، جہاں خسرو اور امراء رہتے تھے۔ اس کے پاس خادم بھی تھے اور اس کے خزانوں میں اتنا سونا جمع تھا کہ 100 گھرانوں کا خرچ نکال سکتا تھا۔ لیکن ایک بات ایسی تھی جو ابراہیم کو سب سے الگ کرتی تھی۔ وہ کہا کرتا تھا، دنیا میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ تقدیر یہ صرف کمزور لوگوں کا بہانہ ہے۔ میں اپنی عقل اور محنت سے یہاں تک پہنچا ہوں، اس میں اللہ کا کوئی احسان نہیں، یہ سب میری قابلیت کا نتیجہ ہے۔ جب لوگ اسے کہتے، ابراہیم اللہ کا شکر ادا کرو، تو وہ ہنستا اور کہتا، شکر؟ کس بات کا؟ میرا مقام میں نے خود بنایا ہے۔ بازار میں لوگ چپکے چپکے کہا کرتے، ابراہیم بہت ذہین ہے، مگر اس کا غرور ایک دن اسے برباد کر دے گا۔ لیکن ابراہیم کو ان باتوں کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مست رہتا اور خود کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتا تھا۔ ایک دن عصر کی نماز کا وقت قریب تھا اور سورج مغرب کی طرف جھک رہا تھا کہ ایک درویش ابراہیم کی دکان پر آ پہنچا۔ اس کی عمر لگ بھگ 70 برس رہی ہوگی، چہرے پر نور، آنکھوں میں ایسی گہرائی جیسے سمندر، بال اور داڑھی پوری طرح سفید ہو چکی تھی، تن پر سادہ سا خرقہ، ہاتھ میں ایک لکڑی کا عصا اور پشت پر ایک پرانا جھولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، درویش نے سلام کیا۔ ابراہیم نے بے رخی سے نظر اٹھائی اور آہستہ جواب دیا، وعلیکم السلام، کیا چاہیے؟ اگر بھیک مانگنے آئے ہو تو آگے بڑھ جاؤ، یہ صرافوں کی منڈی ہے، فقیروں کی نہیں۔ درویش نے مسکرا کر دیکھا۔ وہ مسکراہٹ عجیب تھی، جس میں کوئی چھپی ہوئی دانائی تھی۔ نہیں بیٹا، میں بھیک مانگنے نہیں آیا، میں مسافر ہوں، دور کے سفر سے آیا ہوں، صرف کچھ دیر یہاں بیٹھ کر آرام کر لوں۔ ابراہیم نے اشارہ کیا، بیٹھ جاؤ، مگر گاہکوں کا راستہ مت روکنا۔ درویش دکان کے ایک کونے میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا جھولا نیچے رکھا، اسے تکیہ بنایا اور آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ شام کا وقت تھا، مشتری کم تھے۔ ابراہیم حساب کی کتابوں میں لگا ہوا تھا، کتنے دینار آئے، کتنے خرچ ہوئے۔ اسی دوران درویش نے آنکھیں کھولی اور پوچھا، بیٹا، یہ دکان تمہاری اپنی ہے؟ ہاں میری ہے، اور صرف یہی نہیں، اس شہر میں میری 3 دکانیں ہیں، ابراہیم نے فخر سے جواب دیا۔ ماشاء اللہ، اللہ نے تمہیں بہت نوازا ہے۔ ابراہیم نے قلم نیچے رکھ دیا اور بولا، بزرگوار، یہ اللہ کی دین نہیں، میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ میں 4 سال کا تھا جب میرے والد کا انتقال ہوا، والدہ نے پالا، پھر میں نے کم عمری میں ہی کام شروع کیا۔ پہلے ایک تاجر کے یہاں خادم بنا، پھر منڈی میں چھوٹا سا ٹھیلا لگایا، پھر آہستہ آہستہ اپنا کاروبار کھڑا کیا۔ یہ سب میری محنت ہے، میرے ذہن کا کمال ہے۔ درویش کچھ دیر چپ رہے، پھر پوچھا، تو تمہارا مطلب ہے کہ تقدیر جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں، ابراہیم نے فوراً کہا، تقدیر تو صرف ایک کہانی ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنا مقام اپنی محنت سے بناتا ہے۔ درویش نے گہری سانس لی، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک ابھری۔ اچھا، تو اگر میں کہوں کہ میں تمہاری تقدیر خرید سکتا ہوں؟ ابراہیم چونک گیا۔ کیا کہا؟ میں تمہاری قسمت خریدنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم زور سے ہنس پڑا، اس کی ہنسی دکان میں گونج گئی۔ بزرگوار، لگتا ہے سفر کی تھکن نے آپ کی عقل پر اثر کیا ہے۔ قسمت بھی کوئی بیچنے کی چیز ہوتی ہے؟ کیوں نہیں؟ درویش نے پورے سکون سے کہا، جب تم کہتے ہو کہ تقدیر ہوتی ہی نہیں تو اسے بیچنے میں تمہیں کیا تردد؟ اگر یہ محض ایک فسانہ ہے تو یہ سودا تمہارے لیے فائدے کا ہے۔ ابراہیم کا تاجر دماغ چلنے لگا۔ بزرگ کیا مطلب رکھتے ہیں؟ درویش نے اپنا جھولا اٹھایا اور اس میں سے ایک تھیلی نکالی۔
थैली खोली तो उसमें से चमकते हुए सुनहरी दीनार झलकने लगे, असली खालिस बेऐब। ये देखो, 10,000 दीनार, ये तुम्हारे हैं, सिर्फ एक शर्त के साथ। कौन सी शर्त? इब्राहिम की आंखें थैली पर जम गईं। तुम एक कागज पर लिख दो कि तुमने अपनी तकदीर मुझे 10,000 दीनार में बेच दी है। यानी जो कुछ भी तुम्हारे मुकद्दर में अल्लाह ने लिखा है, खुशी या गम, माल या मोहताजी, सेहत या बीमारी, कामयाबी या नाकामी, सब कुछ मेरा हक होगा और ये 10,000 दीनार तुम्हारे। इब्राहिम के दिल में लालच जाग उठा। 10,000 दीनार? इतनी रकम में वो एक और दुकान खोल सकता था, और वैसे भी वो तकदीर पर यकीन ही नहीं रखता था, तो ये तो सीधा सीधा नफा था। ठीक है, मैं तैयार हूं। दरवेश ने एक पुराना कागज और कलम निकाला, साथ में स्याही भी रखी। वो बोला, लिखो, अना इब्राहिम बिन याकूब बेतु कदरी कल्ला लिहाजा दरवेश बेइशरत आलाफ दीनार। यानी मैं इब्राहिम बिन याकूब अपनी पूरी तकदीर उस दरवेश को 10,000 दीनार में बेच रहा हूं। इब्राहिम ने बगैर एक लम्हा खोए वो जुमले लिख दिए, फिर अपना नाम लिखा और नीचे अपनी मोहर लगा दी, वही खास मोहर जो वो तिजारत के कागजात पर लगाया करता था। दरवेश ने कागज उठाया, गौर से देखा, फिर उसे अपनी झोली में रख लिया। फिर उसने 10,000 दीनार की थैली इब्राहिम के सामने रख दी। कहा, ये लो तुम्हारे दीनार। गिनने की जरूरत नहीं, पूरे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। इब्राहिम ने फिर भी गिने, वाकई 10,000 थे। दरवेश खड़ा हुआ, अपनी झोली संभाली और लाठी पकड़ी। कहा, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे इब्राहिम, याद रखना घमंड के बाद तबाही आती है। ये कहकर वो दुकान से बाहर निकल गया। गली में यूं गुम हुआ जैसे दरख्त के पीछे हवा ओझल हो जाए। इब्राहिम खुशी से झूम उठा, क्या सौदा किया मैंने, 10,000 दीनार बिल्कुल यूं ही। वो बूढ़ा नादान था और मैं चालाक। उसने थैली अपने खजाने में छुपाई और घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में सोचता रहा, कल मैं बगदाद के दूसरे इलाके में एक और दुकान खोलने की तैयारी करूंगा, मेरा कारोबार और बढ़ेगा। अगला दिन आया, एक आम सा दिन, या शायद ऐसा लगता था। इब्राहिम सुबह जल्दी उठा, उसने वुजू किया, लेकिन सिर्फ रस्मी तौर पर, दिल से नहीं। फिर अपनी दुकान की तरफ रवाना हुआ। जब वो दुकान पहुंचा तो देखने वालों ने कहा, इब्राहिम साहब, आज आप मुबारक हो। कल रात आपका एक और तिजारती काफिला यमन से वापस आया है। उसमें बहुत सा माल था, मोती, नीलम और सुर्ख पत्थर। इब्राहिम खुश हुआ, वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वो काफिले का सरदार था। साहब, साहब, वो हाँफते हुए बोला, क्या हुआ? साहब, रास्ते में काफिले पर डाका पड़ गया। इब्राहिम का चेहरा जर्क पड़ गया। क्या? हाँ साहब, समंदर के किनारे जब हम बसरा के पास से गुजर रहे थे तो छुपे हुए डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने सारा माल लूट लिया, कुछ आदमी जख्मी भी हुए। मैंने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन इब्राहिम के हाथ से कलम गिर गया। ये कैसे हो सकता है? इसका सामान तकरीबन 30,000 दीनार का था। सब कुछ लूट गया। लेकिन इब्राहिम ने खुद को संभाला। चलो, कोई बात नहीं, ये तिजारत का हिस्सा है, नुकसान होना भी मुमकिन है। कुछ दिन और गुजरे। इब्राहिम ने अपना काम जारी रखा, मगर फिर एक और मुसीबत आन खड़ी हुई। एक आदमी आया, वो बगदाद के काजी का नायब था। इब्राहिम बिन याकूब? जी, मैं ही हूँ। तुम्हें काजी ने बुलाया है, फौरन चलिए। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? वहाँ जाकर मालूम हो जाएगा। इब्राहिम घबरा तो गया, मगर इनकार की गुंजाइश नहीं थी। वो काजी के दरबार में पहुंचा। वहाँ एक और ताजिर खड़ा था, राशिद। यही वो शख्स था जो बरसों से इब्राहिम का सख्त हरीफ था। काजी ने इब्राहिम से पूछा, क्या तुमने राशिद के माल में मिलावट की? इब्राहिम चूक उठा। नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? काजी ने कहा, राशिद का कहना है कि तुमने उसे जो सोना भेजा था वो खालिस नहीं था, उसमें तांबा मिला हुआ था। उस सोने से बने जेवर जब बाजार में फरोख्त के लिए गए तो पकड़ लिए गए। ये सब राशिद की चाल थी। उसने इब्राहिम को फंसाने के लिए झूठी साजिश रची थी। राशिद अपने साथ झूठे गवाह भी लाया था। काजी ने फैसला सुनाया, इब्राहिम बिन याकूब, तुम पर 50,000 दीनार जुर्माना आयद किया जाता है और 3 माह के लिए तुम्हारी तिजारत बंद रहेगी। इब्राहिम के कदम लड़खड़ा गए। 50,000 दीनार?
इतनी भारी रकम। उसने अपने जेवर बेचे, कुछ सामान रहन रखा और वो 10,000 दीनार जो उसने दरवेश से लिए थे सब लगाकर जुर्माना अदा किया। 3 महीने तक उसकी दुकानें बंद रहीं। उस दौरान उसके तमाम गाहक दूसरे ताजिरों के पास चले गए। उसके मुलाजिम भी उसे छोड़कर कहीं और रोजी कमाने लगे। जब 3 महीने बाद इब्राहिम ने अपनी दुकान दोबारा खोली तो कारोबार पहले जैसा न रहा। लोग अब उसकी बात पर एतबार नहीं करते थे। कहते थे इब्राहिम ने खोटा माल बेचा था। 1 साल गुजर गया। इब्राहिम का कारोबार आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता गया। फिर आग का वाकया पेश आया। एक रात उसकी सबसे बड़ी दुकान में आग भड़क उठी। कोई नहीं जानता आग कैसे लगी। शायद चिराग से, शायद किसी दुश्मन की कारस्तानी थी। आग ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। सोना पिघल गया, जेवरात बर्बाद हो गए, कागजात जलकर राख बन गए। इब्राहिम टूट चुका था। कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी हवेली बेचनी पड़ी। उसकी बीवी, जो हमेशा उसकी दौलत के सबब उसके साथ थी, भी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। इब्राहिम के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। ना दुकान, ना घर, ना बीवी, ना नौकर। सब कुछ खत्म हो गया। वो अब खुद एक फकीर बन चुका था। वही इब्राहिम जो कभी शहर का सबसे अमीर ताजिर था। 3 साल और गुजर गए। इब्राहिम अब गलियों में भटकता फिरता था। कभी कहीं से रोटी का टुकड़ा मिल जाता, कभी किसी जगह से चंद सिक्के। वो उन्हीं गलियों में फिर रहा था जहाँ कभी उसकी शान और शौकत थी। वो इसी बाजार में भीख मांगता था जहाँ कभी उसकी दुकान हुआ करती थी। अब लोग उसे पहचानते भी नहीं थे। कोई कहता ये दाढ़ी वाला फकीर कौन है? कोई कहता जाने दो, कोई आवारा होगा। इब्राहिम रात को मस्जिद के बाहर सोता, सर्दी से कांपता, भूख से निढाल। एक रात जब वो बिल्कुल अकेला था, उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। या अल्लाह, क्या ये सब मेरे घमंड की सजा है? क्या ये मेरे इसी सौदे का नतीजा है? जिंदगी में पहली बार उसकी ज़बान से अल्लाह का नाम सच्चे दिल से निकला। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था। मैंने तीर का इनकार किया। मैंने खुद को तेरे ऊपर समझा। मुझे माफ़ कर दे या रब, मुझे माफ़ कर दे। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सिसकियां रात की खामोशी में गुम हो गईं। कुछ महीने और गुजर गए। एक दिन इब्राहिम उसी जगह बैठा था जहां कभी उसकी पहली दुकान हुआ करती थी। अब वहां किसी और की दुकान थी। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी। अचानक एक साया उस पर पड़ा। इब्राहिम ने ऊपर देखा। वही दरवेश खड़े थे। वही सफ़ेद बाल, वही नूरानी चेहरा, वही झूली और वही लकड़ी का असा। इब्राहिम के मुर्दा दिल में जैसे जान पड़ गई। वो उठकर उनके कदमों पर गिर पड़ा। बुजुर्ग, आप, वाकई आप ही हैं। वो रोते हुए बोला, उठो बेटा, उठो। दरवेश ने उसे सहारा दिया। बुजुर्ग, मुझे माफ़ कर दीजिए। इब्राहिम की आवाज़ लरज रही थी। मैं समझ गया हूँ, मैं सब समझ गया हूँ। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था, कितना गुनाहगार। क्या समझ आया इब्राहिम? इब्राहिम ने आंसू पूंछते हुए कहा, मैं समझ गया कि तकदीर होती है। अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है। जिस दिन मैंने अपने नसीब का सौदा किया, उसी दिन से मेरी बर्बादी शुरू हो गई। हर रोज़ कोई ना कोई मुसीबत टूट पड़ी। मेरा काफिला लूटा, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा, मेरी दुकान जल गई, मेरा घर बर्बाद हुआ, मेरी बीवी मुझे छोड़ गई। 3 साल से मैं जिल्लत में जी रहा हूँ। इब्राहिम ने दरवेश की तरफ देखा। बुजुर्ग, अब मुझे यकीन हो गया कि इंसान की मेहनत ज़रूरी है, मगर हर फैसला अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। इंसान कितनी भी चालाकी कर ले, जब तक अल्लाह न चाहे कुछ नहीं बनता, और जब अल्लाह चाहे तो कोई ताकत अल्लाह के फैसला को रोक नहीं सकती। दरवेश ने मुस्कुराकर अपना झूला खोला और उसमें से वो पुराना कागज़ निकाला। वही कागज़ जिस पर इब्राहिम ने अपनी तकदीर बेचने के अल्फाज लिखे थे। ये लो इब्राहिम, तुम्हारा कागज़। इब्राहिम ने कांपते हाथों से कागज़ थामा। उसे देखते ही उसकी आंखें भर आईं। बुजुर्ग, लेकिन अब ये तुम्हारी तकदीर है इब्राहिम। मैं तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक वसीला था, तुम्हें सबक देने के लिए। तुमने अपना सबक सीख लिया। अब अल्लाह चाहते हैं कि तुम्हारी तकदीर तुम्हें वापस मिल जाए। इब्राहिम ने कागज़ अपने सीने से लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। या अल्लाह, ए मेहरबान, मुझे माफ़ कर दे। दरवेश ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटा,
अल्लाह बख्शिशने वाले हैं, वो माफ़ कर देते हैं। अब तुम अपनी ज़िंदगी दोबारा संभालो, मेहनत करना मगर तकब्बुर ना करना, अपने हाथ की कमाई पर भरोसा रखना मगर अल्लाह से बढ़कर नहीं, समझे? जी बुजुर्ग, जी। इब्राहिम ने सर हिलाया। और याद रखना, जो सबक तुमने सीखा है उसे दूसरों तक पहुंचाना, ताकि कोई और तुम्हारी गलती ना दोहराए। फिर दरवेश ने झोले से एक और थैली निकाली। ये लो, कुछ दिनार है, इनसे एक छोटी सी शुरुआत करो, फिर देखना अल्लाह क्या करते हैं। इब्राहिम ने थैला खोली, उसमें 500 दिनार थे। बुजुर्ग, आप कौन हैं? कहाँ से आते हैं? दरवेश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ इब्राहिम, अल्लाह का बंदा। जहाँ वो भेज देते हैं वहाँ चला जाता हूँ। ये कहकर दरवेश आगे बढ़ गए। इब्राहिम ने पलट कर देखा तो वो ऐसे गायब हो चुके थे जैसे हवा में तहलील हो गए हों। उस रात इब्राहिम ने 500 दिनार संभाल कर रखे और एक छोटी सी हवेली के बाहर पनाह ली। सुबह जब आंख खुली तो उसने वुजू किया, इस बार सच्चे दिल से। फिर फजर की नमाज अदा की, जिंदगी में पहली बार इस कदर सुकून के साथ। नमाज के बाद वो देर तक बैठा सोचता रहा, अब मैं क्या करूं? क्या दोबारा कारोबार शुरू करूं? उसने फैसला किया कि इस बार आगाज बहुत छोटा होगा। वो बाजार गया, एक थैले में चंद सस्ते जेवर खरीदे और गली गली जाकर बेचने लगा। पहले दिन सिर्फ 10 दिरहम कमाए, मगर चेहरे पर इत्मीनान था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह का करम है। वक्त के साथ उसकी मेहनत रंग लाने लगी। चंद महीनों में उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। 1 साल में वो दुकान भी खरीद ली। लेकिन इब्राहिम अब वो नहीं रहा था जो पहले था। वो हर सुबह फजर लाजिमन पढ़ता, तिजारत से जो कमाता उसमें से रोज़ कुछ न कुछ सदका निकालता, हर फैसले से पहले अल्लाह से रहनुमाई मांगता। कामयाबी मिलती तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता, नुकसान होता तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर सब्र करता। 5 साल गुजरे और इब्राहिम दोबारा एक कामयाब ताजिर बन चुका था। उसकी 2 दुकानें थीं, अपनी हवेली थी, इज्जत थी, मगर तहे दिल से वो एक बदल चुका इंसान था। साल गुजरते गए, इब्राहिम बूढ़ा होने लगा। उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी। वो अक्सर नौजवान ताजिरों को अपने पास बिठाता और अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुनाता। वो कहता, देखो मेरे भाइयों, मैं तुम्हें एक बहुत अहम बात बताता हूँ। ज़िंदगी में मेहनत करो, अक्ल से काम लो, तिजारत में समझदारी ज़रूरी है। ये सब सलाहियतें अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, उन्हें इस्तेमाल करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। लेकिन कभी ये ना समझना कि सब कुछ तुम्हारे अपने हाथ में है। कभी ये गुरूर ना करना कि कामयाबी सिर्फ तुम्हारी चालाकी या मंसूबाबंदी का नतीजा है, क्योंकि तकदीर अल्लाह के हाथ में है। तुम्हारी मेहनत ज़रिया है, मगर नतीजा वही देता है जिसे वो चाहे। मैं वो शख्स था जो तकदीर को मानता ही नहीं था। मैंने अपनी किस्मत बेच दी थी, मिजाज समझकर। लेकिन उसी दिन से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होना शुरू हुई। 3 साल तक मैं गलियों में भटकता रहा, भीख मांगता रहा, जिल्लत उठाता रहा। जब मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है, और जब मैंने सच्चे दिल से तौबा की, तब अल्लाह ने मेरी तकदीर मुझे लौटा दी। फिर उसी ने मुझे इज़्ज़त दी, रिस्क दिया और दोबारा खड़ा कर दिया। लोग उसकी बातें सुनते और हैरान रह जाते। कुछ को यकीन ही नहीं आता था, कुछ गहरी सोच में डूब जाते। एक नौजवान ने पूछा, लेकिन इब्राहिम साहब, वो दरवेश कौन थे? इब्राहिम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, पता नहीं बेटा, शायद वो अल्लाह के किसी वली थे, शायद कोई फरिश्ता थे अल्लाह के हुक्म से, या शायद अल्लाह ने किसी और सूरत में मुझे सबक दिया। जो भी थे, उसी दिन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और उसी सबक ने मुझे इंसान बनाया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जब इब्राहिम बीमार पड़ गए तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, मेरे पास एक कागज़ है, वो मेरे संदूक में रखा है। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो इस कागज़ को मेरे साथ दफना देना। बेटे ने हैरत से पूछा, कौन सा कागज़ अब्बा जान? वही कागज़ जिस पर मैंने अपनी तकदीर बेचने का इकरार लिखा था। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है, इसे मेरे साथ ही जाना चाहिए। बेटे ने सर झुकाकर कहा, जी अब्बा, जैसे आप चाहेंगे वैसे ही होगा। कुछ दिन बाद इब्राहिम का इंतकाल हो गया। लोग बड़ी तादाद में जनाजे में आए, क्योंकि इब्राहिम अब शहर में एक नेक और बावकार इंसान के तौर पर पहचाने जाते थे। जब उन्हें कब्र में उतारा गया तो वो कागज़ भी उनके साथ रखा गया, वही कागज़ जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी का रास्ता बदल दिया था।
اور جو ان کے لیے سب سے بھاری مگر سب سے سچا سبق بن گیا تھا۔